नाउ डिस्कस अबाउट द ग्रेविटी, और ग्रेविटी के साथ फिर हम लोग डिफरेंस लेके चलेंगे ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में, ठीक है, और रिलेशन लेके चलेंगे स्मॉल जी एंड कैपिटल जी और कुछ न्यूमेरिकल्स। ग्रेविटी इज द फोर्स exerted by the earth. Gravity is the force exerted by the earth on a body when it is on the earth or near to the earth's surface. The force exerted by earth on a body when it is on the earth or very close to the surface of earth, known as gravity, and is just equals to the weight of the body. It is just equals to weight of the body, यानी कि F equals to mg, where F is known as gravity. क्लियर? ये एक फोर्स होगा और इस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को अपने तरफ अपने इट एक्टिंग ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं डिफरेंस इन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने निकाला था वो और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस हैं वो डिस्कस करते हैं। नाउ अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, इट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू बॉडीज थ्रू आउट द यूनिवर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू आउट द यूनिवर्स between two bodies, while gravity is the force exerted by the earth on the body when it is on the surface or close to the surface of the earth. Is the first difference. Now second, if suppose there are two bodies A and B, the force on B due to A will be G ma mb by r square if r is the separation distance acting towards A, while the force on the body due to earth always acting toward the center of the earth. The direction of the force will be always towards the center of the earth. ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस, नाउ इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, if distance between two bodies quite large, almost infinite, force will be zero. आपको पता है फॉर्मूला F equals to G m1 m2 by r square। जैसे से r बड़ा होता जाएगा F कम होता चला जाएगा। अगर हम r ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। while acceleration due to while the gravity is zero at the center of the earth, gravity will be zero at the center of the earth because it acting from the center, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा? जाके जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। और अब हम लोग लेके चल रहे हैं रिलेशन बिटवीन, या पहले जानो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity. Acceleration produced in a body
under the effect of gravity known as acceleration due to gravity. Acceleration produced in a body under the effect of gravity known as acceleration due to gravity and represented by small g. Represented by small g. Its value 9.8 meter per second square on the surface of Earth. It is not uniform at all. It is not constant at all. So it is 9.8 meter per second square. The acceleration due to gravity. मतलब F equals to आपको पता है mg होगा ना, जैसे F equals to ma होता है वैसे mg हो जाएगा. If m equals to 1 किलोग्राम, g equals to f. ऐसे डिफाइन कर सकते थे. Acceleration due to gravity is equals to force exerted by the earth when a mass of body is 1 kg. Acceleration due to gravity is the force exerted by the earth on a body whose mass is 1 kg. तो g equals to f बन जाएगा. स्मॉल g का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो m0 l t minus 2 होगा. It is the dimensional formula of small g, m0 l t minus 2. ठीक है. और अब रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग स्मॉल g एंड कैपिटल G के साथ. रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G. Relation in between small g and capital G. तो it is the earth, r is the radius, capital M is the mass of the earth. A body of mass small m lying on the surface of earth. तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगा. ठीक. एंड यू नो दैट अबाउट द ग्रेविटी फोर्स exerted by the earth on the body when it is lying on the surface or close to the surface, and it just equals to weight of the body. दोनों फोर्स सेम बॉडी के बीच में लग रहे हैं, दोनों फोर्स सेम बॉडीज के बीच में लग रहे हैं, तो इक्वल होंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 mg इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर और g इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर. It is the relation between small g and capital G, gm by r square. So what the conclusion? Conclusion is acceleration due to gravity does not depend the mass of the body. स्मॉल m नहीं आया यहाँ पर. हम लोग बॉडी का मास क्या लेके चल रहे थे? स्मॉल m. तो acceleration due to gravity does not depend the मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. चाहे हम पेन गिराएंगे या नोटबुक गिराएं, स्मॉल जी सेम होगा. इट डज नॉट डिपेंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो जी एम बाई आर स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ. नाउ मास ऑफ द अर्थ.
हमें मास ऑफ द अर्थ निकालना है। ये मास ऑफ द अर्थ ही तो है, तो m क्या आएगा, GR² बाई कैपिटल G, और 9.8 6.4 10 to the power 6 स्क्वायर अपॉन 6.67 10 to the power -11। और इसको सॉल्व करेंगे तो मास मिलेगा 6.018 10 to the power 24 kg। तो इस तरह हम लोग मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ। ना अब निकालना है डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना है हमें। रो मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 3m अपॉन 4 पाई आर क्यू। m की वैल्यू लगा दो, GR² बाई GR क्यू। m की वैल्यू पुट कर दी, GR² बाई दिस वन 3g/4 पाई GR। ये R² था, यहाँ R³ था, तो R² कैंसिल हो गया, यहाँ पे R बच गया, तो 3g/4 पाई, और ये G आ गया और R बच गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी बनेगी 5.5 10 to the power 3 5.5 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? एक दो न्यूमेरिकल देख लो इसके ऊपर, हम लोग एक दो न्यूमेरिकल लेके चलते हैं स्मॉल g और कैपिटल G के ऊपर, देखें इसको। तो एक क्वेश्चन है, assuming the earth to be a uniform sphere of radius 6400 kilometer and density 5.5 gram per centimeter cube, find the value of small g on its surface. Capital G is given 6.67 10 to the power -11। तो हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल g। फॉर्मूला आपको पता है, Gm/r²। डेंसिटी गिवन है, कैपिटल M इज नॉट गिवन, कैपिटल M को चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के टर्म्स में। तो फॉर्मूला मिल जाएगा आपको 4/3 पाई आर रो इंटू जी। वी होता है 4/3 पाई आर क्यू, R² से कैंसिल हो गया, तो 4/3 पाई आर रो जी, ये मिल गया। और अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी वैल्यूज लगा दो। तो G कॉस्ट
4/3, 3.14, 6.4 10⁶। डेंसिटी दे रखी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 5.5 10⁻³ बन जाएगा ये। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जाके 9.82। 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, क्वेश्चन ये है, अ प्लैनेट whose size is the same and mass 4 times as that of Earth. Find the amount of energy needed to lift a 2 kilogram mass vertically upwards through 2 meter distance on the planet. The value of G on the surface of Earth take 10 meter per second square. अब ये क्वेश्चन है, फिर से सुने स्टेटमेंट। A planet whose size is the same as that of size same and mass 4 times that of Earth. Find the amount of energy needed to lift a 2 kg of mass vertically upwards distance from the planet. The value of a small g on the surface of Earth is 10. आपको पता है कि g equals to gm/r² होता है। साइज सेम है लेकिन मास 4 टाइम्स है, तो ये 4g बन गया। g डैश क्या बन गया? 4g, या g डैश हो जाएगा 4 × 10 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एनर्जी चाहिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा mgh। तो W = mg⁻h, ठीक है, mg⁻h। और अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और 2 kg का मास है, g' 40 है, h 2 है, तो ये हो जाएगा 160 जूल। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं जो कॉम्पिटिशन्स में भी आया हुआ है। स्टेटमेंट सुने आप। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ shrinks by 2%, mass remaining same, then how would the value of acceleration due to gravity change? If the radius of Earth shrinks by 2%, mass remaining same, then how would the value of acceleration due to gravity change? अब ये क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं। तो क्या दिया वो जाने आप, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, G = gm/r² और डेल्टा r/r
इंटू 100 दे रखा है -2%। माइनस ले लिया क्योंकि स्ट्रिंग कर रहा है, या 2% लेके चलो कोई बात नहीं, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, 2% ले लो। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लॉग ले लो, लॉग जी इक्वल्स टू लॉग कैपिटल जी प्लस लॉग कैपिटल एम -2 लॉग आर। डिफ्रेंशिएट कर दो, या डेल्टा जी अपॉन जी भी लिख सकते हैं इसको। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। परसेंटेज में निकालना है, और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दे रखा है, दैट इज 2%। -4% हो गया, -4%। क्या मतलब हुआ -4% का? मतलब ये हुआ कि जो अगर ये स्ट्रिंग कर रही थी, यानी कि अगर कम हो रही थी, ठीक है, तो उसका अपोजिट इफेक्ट आएगा। का मतलब है अगर ये हो तो ये बढ़ेगा, या अगर आप यहां पे माइनस ले लेते तो यहां क्या आ जाता? प्लस। ठीक है, माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ये माइनस चल रहा है, और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 -2% तो क्या आ जाता? 4%, यानी जस्ट अपोजिट रिजल्ट आएगा। और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 -2% ले लिया क्योंकि स्ट्रिंग कर रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा? +4%। मतलब ये है कि अगर रेडियस स्ट्रिंग करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी। याद रखें, हमेशा डबल होती है। 1.5 होता तो 3% हो जाती है, 2% तो 4% हो जाएगी, हमेशा डबल होती है। 2 डेल्टा आर बाई आर बनता है इसलिए। तो आप याद रखें, ऑलवेज 2 टाइम्स। तो इस तरह आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हो, और ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक।